This Uh, conference will we now be recorded. we already completed the defense technology and space technology. Just any one of you can confirm me that I already completed all the missions from ISRO and also certain important missions of NASA. Anyone could tell me that I already completed the missions related to NASA? Who is there? Sir, Okay, I missed I your think one class, but I saw the slides. I think you didn't completed the missions from ISRO and NASA. no, I already completed the missions of ISRO and NASA. Are you sure? So I'm I not it sure. might I be that missed I your one forgot to class. send the. I will see the recording. I have Okay, missed your one class. okay. So today we will be doing a new topic. Okay, I think we have already finished that. If it's not there in your recording, then you can confirm me in the next class. In the next class, we can go further and study the missions related to NASA and ISRO. Okay. So today we will be doing a new topic, that is information technology and communication, that is IT. So this is a very important topic for UPSC, and not only for UPSC. If you are going to give any government exam, this topic becomes very important, because without IT and communication, uh, I will say that none of the industries, any industry, be it a manufacturing industry, be it a aviation industry, any industry will not means it will be a needful, or I should say it will be an essential part of each and every industry, that is information technology and communication. So what we will be doing, as I already divided the science and technology into 5 big pillars, out of which we already completed defense technology completely, space technology, and today we will go through IT and communication. First topic that we will study, that under which ministry it comes, because ministry again becomes a very important part when we are studying any of this topic of science and technology. Departments, what are the organizations, is there any regulatory body, and what are the government schemes. Then we will study about computer technology, that how computer came into existence. Okay, just a basic understanding that how computer means, the history of computer. Okay, we will not go into the details of the how means all the historical background of the computer, but we will uh, have a just basic understanding that how, what were the other computers that were used before the present modern computer came into existence. Then mobile technology is very important, robotics, and recent developments in IT and communication, like artificial intelligence, um, like Bitcoin. Okay, these are all the recent developments in the IT and communication. That also we will study. So what will be our scope of lecture today? We will go through the Ministry of Communication, that under which ministry it comes, Ministry of Electronics and Information Technology. This both ministry is related. Ministry of Communication is entirely for the communication, and Ministry of Electronics and Information Technology is under this ministry, which departments are there that is concerned with this computer related things. What are the basics of computer, basics of display technology, and trending and emerging technologies. Okay, throughout this course, means
which I am starting today. Throughout this lecture session of IT and communication, we will study all these topics. Okay. So coming to Ministry of Communication. Now, there is a Department of Telecommunication. Now, this Department of Telecommunication, under this department is under Ministry of Communication. Okay, which is under Union Government. Okay, under this there are many organizations, like you must be knowing about TRI. Can anyone tell me what is this? You must be knowing about TRI. Sir, Telecom Regulatory Authority of India. Yes, Telecom Regulatory Authority of India. That many a times we have seen that when Reliance Jio was coming into existence, okay, it was providing free internet connection. I think it was during 2017 or 18. Okay, So 16. that 16, na? Acha, acha, yeah, Hmm. it's 2016. So when first Geo came into existence, it was providing free internet, and there was a case that was lodged by all other telecom companies like Airtel, Vodafone, Idea, which used to exist before. Now also they exist. So all these companies, what they did, they made a case on Reliance Jio, that where they has put this case, they has not a case, they has reported that Reliance Jio is giving free internet and that is taking away their customers. So they have reported about this issue to the TRI, but TRI has given a clean sheet to Reliance Jio. So it is the Telecom Regulatory Authority, which comes under Department of Telecommunication under Ministry of Communication. So this is the whole entire ministry under which the communication system comes, be it a telephonic communication, the internet we are using. Okay, any communication that is coming under Ministry of Communication. Then what are the departments under this? There is Ministry of Communication. Under this, there is a Minister of State. Under many ministries, you will see that there is a state minister. Like we have a Minister of Road and Transport. Under that ministry also, we have a Minister of State for Road and Transport. Okay. So under that, there is a Minister of State. Minister of State doesn't mean state ministers, provincial minister. Okay, this is all. This is also a union ministry. This is also a union ministry, which is under Ministry of Communication. Then there is Secretary Duty and Chairman of Digital Communications. Okay, Secretary of Department of Telecommunication and Chairman Digital Communications Commission. Under this, there is a Department of Telecommunication. Now, from here, what type of questions you can expect in UPSC? They will give you that consider the following statements with respect to. They will give you consider the following statement with respect to telecommunication, and they will tell you that Department of Telecommunication comes under Ministry of Electronics and Information Technology. Now this statement will be wrong. Department of Telecommunication is coming under the Ministry of Communication. Under this Department of Telecommunication, there are other bodies like Statutory Body, Subordinate Body, Autonomous Body, Department of Telecommunication units, training institutes, and public sector units. Now, statutory body, what is this statutory body? Everyone know? Tell me. Because this is a part of polity. If you have done your polity classes well, then you must know what is statutory body. Tell me. A body set up by passing a law.
It is not mentioned in the constitution. It has been later set up by passing a law of the parliament. That means a body is set up by a statute, that is by a law that is passed from the parliament. पार्लियामेंट से बिल पास करके जो बॉडी बनाया जाता है उसी को बोलता है स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, जिसका मेंशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं मिलेगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. सो वी विल सी दैट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ telecommunications there is a statutory body, subordinate bodies, autonomous, and all these bodies. Then what are the statutory bodies? TRI is one of the statutory body, and Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal. Now I'm asking you one more question. It's a tribunal. Tribunal means it's a court. Okay, but it does not have the authority to give punishment. You can settle your dispute there, but tribunal doesn't have the authority to give punishment. Okay, like there are green tribunal. Okay, so Telecom Regulatory Authority of India. Now whatever we see in the television today, this also comes under telecommunication. Okay, like the recently I think before 1 to 2 years it has been made compulsory for the cable that they will not provide all the cable line channels. Previously it used to exist that the billing system with DTH, Tata Sky, and other private limited companies, but now previously what used to happen that not in the metro area but in the rural areas we have seen that cable line used to give all the channels, okay, in one rental. But from 2018, I think 18 or 17, the TRI has made the rule that only the channels for which they are going to pay, only that dedicated channel will be shown. So now the similar system is introduced in the local cable lines also, which is there in the DTH and all other private limited companies. Okay, so that rule was set up by TRI. Like now we get that there are no phone calling charges if we call between from one operator to another. That is, if I am calling from an Airtel to Vodafone or Airtel to BSNL, there will be no charges. So this rule has also been done by TRI. Previously this rule was done, but in the middle we see that TRI made that chargeable, that is calling from one company to another, but again TRI has made it free. So all this type of rules and regulations related to telecommunication are being set up by the Telecom Regulatory Authority of India, that is TRI. Subordinate office is Wireless Monitoring Organization. What is the work of this wireless monitoring organization? This is to see like the towers that are set up, okay, from which we get signal to our mobile phones. That should not means what will be the parameter depending on which type of radiation, on which frequencies radiation it will emit to provide the signal. That are all parameters are set up by wireless monitoring organization. Autonomous body like Center for Development of Telematics. Okay, so there are several bodies. There is no need to know details of all the bodies until and unless there is any news related to all these bodies in the current affairs. But you should know at least the name of all the institutes and all the bodies that is coming under the Department of Telecommunication. Training institute like NTI, PRIT, okay, it's a research institute. Like in the telecommunication, everything is done that how to increase the speed. Previously, what used to happen, if you have remembered, I think
Even I was in the school when GPRS first internet came in the mobile. Okay, I was in the school. I don't know you all remember or not that previously we used to have a phone not like this. Now we use smartphone, but previously there was a phone like Nokia 3315, something like that, the old model. Okay, and then when first internet came into the mobile, the first internet system that we used to use that was called GPRS, if you remember. Tell me. What's up? Uh, जब पहली बार इंटरनेट मोबाइल में आया, ठीक है, मोबाइल तो पहले दिन से ही स्मार्टफोन नहीं था, मुझे पता नहीं तुम लोगों ने देखा या नहीं। पहली बार जब देखा है मोबाइल सर। आया तो उसमें तो इंटरनेट ही नहीं थे। फिर जब पहले इंटरनेट आया, दैट टाइम द इंटरनेट वाज कॉल्ड जीपीआरएस, isn't it? And then we saw that this internet was developed to 2G speed. I think this you must know, 2G speed. Okay, Yes, and sir. when Yes. in 2G speed, it was very hard to open in any video. Means if you want to play at a 144 pixel rate video in YouTube also, then also it doesn't play it without buffering, and it used to take a long time to play a video. Okay, but gradually when we see a update from 2G to 3G, we saw that videos, at least in the lower definition, means lower qualities video, means lower quality resolution videos were being played in a 3G speed. And then came the modern Reliance Jio 4G, through which we see that the videos are being played, the websites, everything we can do very smooth, not very smoothly, but smoothly we can do it. And now it is being upgraded to 5G. Not yet all the developments are done, but so this, who does this research from GPRS to 2G, 4G, 5G? This has to be done under National Telecommunication Institute of for Policy Research, Innovation, Training. Okay, and also they does that type of research that how internet can be provided at a very low cost. Okay, like National Institute of Communication Finance. There is another institute that is National Communication Institute of Communication Finance. Then there are Department of Telecommunication units. Under this, there is Telecom Enforcement Resource and Monitoring Cells, formerly Vigilance Telecom Monitoring. Okay, like whenever we try to call someone, the all the resources that are recorded, that are done by the VTN. ठीक है, जैसे हमारा लोकेशन कहाँ है, ठीक है, ये पुलिस कैसे पता करता है? How does police gets to know? They gets to know through this vigilance telecom monitoring system. ठीक है, अब पुलिस जब when we get our phone stolen, we don't get the phone, but if the police wants, if the SIM card is inserted in the mobile phone, then it is possible that through this vigilance telecom monitoring, where is the location of our SIM card, that can be traced. Okay. Then wireless planning and coordination wing, telephone advisory committees are there. Some public sector units are there. Public sector units mean these are the company, which is PSU, public sector units. Okay, that means public limited company. Bharat Sanchar Nigam Limited, BSNL, MTNL, Mahanagar Nigam Limited, Telecommunication Consultants India Limited, and then this BBNL, Bharat Broadband Network Limited. Though this Bharat Broadband Network is coming under BSNL only. Okay, so these are the public sector units that is under telecommunication. Now coming to Department of Telecommunication. So we have studied about all the departments. Now, what are the work of this? I mean, what is the vision of these departments? Their vision is to provide secure, reliable, affordable, and high quality converged
telecommunication services anytime, anywhere for an accelerated, inclusive, socio-economic development. Okay, so what does this mean? They provide a secure means if I am calling you, okay, if suppose I'm calling to Giovanni, then whatever I'm talking with him, that will be confidential between me and him. ऐसा क्या होता है कि मैं फोन करके उससे जो बात करता हूँ वो जो कंपनी का ऑपरेटर का मैं फोन यूज कर रहा हूँ उस पर रिकॉर्ड हो जाता है. ऐसा क्या होता है बोलो. सर जिससे बात कर रहे हैं वो नंबर ऐसे रिकॉर्ड हो जाता है कि इससे बात हुआ और पूरा हाँ, कॉल रिकॉर्ड इससे नहीं बात होता. हुआ वो रिकॉर्ड हो जाता है. मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मैंने तुमको कॉल किया लेकिन मैं तुमसे फोन पे क्या बात कर रहा हूँ क्या ये किसी को पता चलता है मेरे और तुम्हारे अलावा? बोलो. नो सर. दिस कैन ओनली बी डन इफ पुलिस टैप्स योर फोन. ओके, बट दैट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. सो ये नहीं पता चलता. तो इट्स अ सिक्योर. सो इट विल प्रोवाइड अ सिक्योर. क्यों सिक्योर बोल रहे हैं? पहले क्या होता था बिफोर फोन केम टू इंडिया, तो फोन तो ऐसे मतलब अचानक से नहीं आए. फोन तो पहले नहीं थे. तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम? जैसे अब लोग तुम लोगों का भी क्या है फिर अभी तो सब लोगों का मतलब अननोन फ्रेंड्स है, वर्चुअल फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स या वॉट एवर सोशल नेटवर्किंग साइट फ्रेंड्स. पहले क्या होता था? पहले हम लोग बोलते थे उसको पेन फ्रेंड. क्यों पेन फ्रेंड बोला जाता है पता है? पहले तो सर ऐसे जो बहुत दूर फेसबुक रहता नहीं है. थे. पेन फ्रेंड बोला जाता था बिकॉज वी हैव टू राइट अ लेटर. फिर वो लेटर जाके वो पोस्टमैन में हम जिसको वो लेटर लिख रहे हैं ताकि हमारे फैमिली को या कहीं भी सोचो अगर सपोज आई एम डूइंग अ जॉब एट गुजरात. इफ आई हैव टू, मैं गुजरात पहुंचा, गुजरात में मेरा काम चल रहा है, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, वहां जाके मैं ये बात अपने फैमिली को बोलता हूँ तो कैसे बोलूंगा? लेटर लिख. दो टेलीग्राम सिस्टम वाज देयर बट लेटर लिख के हमें बोलना पड़ता था. ठीक है, लेकिन अभी ये क्या बहुत इजी हो गया. मैं कहीं भी जाऊं मेरे पास मोबाइल. पहले तो लैंडलाइन था, फिर लैंडलाइन के बाद मोबाइल फोन आया. तो मोबाइल से मैं ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली मेरे फैमिली को बोल सकता हूँ कि चलो मैं अभी पहुंच गया. तो ये और ये क्या है, बहुत अफोर्डेबल है. Can you tell me in this 2021, is there anyone existing without a mobile phone? बोलो. नो Be सर. it of any class, below poverty level, कुछ भी हो. अगर हमारी फैमिली में सबके मतलब तुम लोगों के फैमिली में शायद सब हर एक मेंबर का मोबाइल फोन है, तो उन लोगों के पास शायद हर एक मेंबर का मोबाइल फोन नहीं हो सकता है, लेकिन फैमिली का एक मोबाइल फोन तो है ही. तो इट हैज बिकम वेरी मच अफोर्डेबल. इट्स एन अफोर्डेबल वे ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि पहले जो था लेटर, लेटर तो सिर्फ वही लोग लिख सकते थे ना जो एडुकेटेड थे. हाउ कुड अनएडुकेटेड पीपल कुड सेंड लेटर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन मोबाइल हर कोई यूज कर सकता है. ऊपर से इट इज गिविंग यू हाई क्वालिटी कन्वर्ज्ड टेलीकम्युनिकेशन. कन्वर्ज्ड मीन्स वन टू वन. कन्वर्ज मीन्स टू वन पॉइंट. ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मतलब जिन 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 लोगों के पास मोबाइल है हर किसी को सुनाई दे रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं होता. इट्स अ कन्वर्ज्ड वे ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. दैट मीन्स मैं जिसको कॉल करना चाहता हूँ पर्टिकुलरली उसी को कॉल करके मैं इंफॉर्मेशन दे भेज सकता हूँ. देन एनीवेयर एंड एनी टाइम. If you are in Darjeeling, if you are in Kashmir, so from there also you can send the information through telecommunication. ठीक है. और इवन मतलब
अगर हम मोबाइल फोन का बात छोड़ दें, ठीक है, अभी तो हम अगर सपोज इफ वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इन एंटार्क्टिका, ओके, वहां पे तो मोबाइल फोन्स नहीं चलेगा, तो एंटार्क्टिका में अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते तो वहां भी हम लोग सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स हमारा इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं टू आवर पेरेंट कंट्री, because each and every country in the world, even India is also doing research in Antarctica, so they also can send information through satellite from there. तो अभी communication बहुत easy हो गया है, okay, and it is an inclusive socio-economic development, anytime anywhere accelerated inclusive socio-economic development. All the words given in this paragraph are keyword, okay. Inclusive का मतलब क्या है बोलो? Did your economics classes started? सर इंक्लूसिव मतलब I cannot explain it, but हाँ, इकोनॉमिक्स में ये टर्म नहीं सुना, इंक्लूसिव? यस सर सुना है, वो मुझे पता है, मतलब मुझे पता है, बट मैं समझा नहीं पाऊंगा. What you Aditya, you are telling others participate, like who is this? Vaishali, Sir, Chandan. inclusive means, sir, nobody must be, I mean, devoid of this, I mean, facility. So that's that everybody Yes, gets access to this. yes, all the sections in the society, be it a marginalized section to a rich class, to a propertied class, each and every sections of the society are getting the benefit of this telecommunication technology. Clear? Inclusive means all, including the people of marginal section also. Now, this is the vision. Then what is their mission? Their mission is to develop a robust and secure state-of-the-art telecommunication network. So they will secure a robust and secure. Okay, that means wherever we go, there will be no issue of problem of a tower. I'm giving you some example. जब हम लोग ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड टाइम्स क्या होता था, टेलीकम्युनिकेशन का सिर्फ मोबाइल फोन ही बेनिफिट है ऐसा नहीं, बहुत सारा बेनिफिट है टेलीकम्युनिकेशन का. पहले क्या होता था, नाउ इफ वी गो टू somewhere for tourism, okay, we just Google Pay, Phone Pay, Paytm the money. Previously we didn't have such digital platforms, no internet connection, so what we have to take, we have to take cash, or else we have to take a post dated check or a tourism check that used to exist, okay. तो पहले ऐसा होता था कि एक सपोज वी आर गोइंग टू पुरी, तो पुरी में जाने के लिए हम लोग एक चेक प्रिपेयर करके ले जाते थे, लेकिन उसमें भी बहुत झमेल, मतलब उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स, दिक्कत रहता था, तो लोग क्या करते थे, कैश कैरी करते थे, बट कैरिंग कैश इज वेरी डेंजरस. सो प्रीवियसली क्या होता था, जो ये ट्रेन स्पेशली जो चंबल एरिया, इफ यू हैव हर्ड अबाउट द चंबल एरिया, ओके, इन द नॉर्दर्न इंडिया इन यूपी, वहां से कोई भी ट्रेन गुजरता था उस टाइम, तो वहां पे रबर मीन्स डिकॉटी होता ही था, क्योंकि हर किसी के पास उस टाइम कैश था. लेकिन अभी हर किसी के पास डिजिटल करेंसी है, तो डिजिटल करेंसी डिकॉटी करके तो कोई ले नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई द robbing in the train has stopped. So you can understand that how this telecommunication network is helping you for the development in the society. It's an inclusive knowledge society. Yes, through this telecommunication network, it not only helps us in the communication process, but it is an inclusive knowledge society. We are also gaining knowledge through this, and not only we, everyone is getting that. Okay, for the last 2 years, the schools are closed, but the education sector is not stopped. The education is going through internet, like I am taking your class through internet. Okay, so telecommunication is also helping us to create a knowledge, and that knowledge is also inclusive. Reposition the mobile device as an instrument
of socio-economic empowerment of citizens. तो ये डिवाइस क्या कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर रहा है सिटीजन्स को, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट का पहले तो इतनी सारे कंपनीज नहीं थे इंडिया में, जैसे सैमसंग भी खरीदते थे तो भी दैट वाज मेड इन चाइना, ठीक है, लेकिन सैमसंग का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है। एप्पल खरीदते थे, दैट वाज आल्सो असेंबल्ड और मेड इन कैलिफोर्निया या मेड इन चाइना मिलता था, बट नाउ आईफोन इज आल्सो बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ओके, सो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए भी हेल्प कर रहा है, और ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इंडिया में बढ़ा रहा है। दैट इज प्रोमोटिंग मेड इन इंडिया initiative of government, promote development of new standard to the meet national requirement। ठीक है, तो न्यू स्टैंडर्ड मतलब अगर अभी 5G ग्लोबली डेवलप हो रहा है शायद, तो 5G इंडिया में भी डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं कि 5G हर जगह चालू, मतलब 6G भी आ गया हर जगह और इंडिया में अभी 5G आ रहा है, तो ऐसा नहीं, जो ग्लोबली हो रहा है वो इंडिया में भी हो रहा है। Attract investment both domestic and foreign. Obviously, as I gave you the example of the Apple industries, so the iPhone is also being manufactured in India. Like Japan is also doing a collaboration with India in this telecommunication sector. Now, what are the functions of Department of Telecommunication? Policy, licensing, and coordination matters relating to telegraph, telephone, wireless data, facsimile, and telematic services. So this policy, they are only not doing, they're not only doing development in the telecommunication, they are also framing laws. Okay, that means they are becoming, they are making new policies. They are giving licenses to new companies like Reliance Jio came into existence. Okay, they're doing new researches in the telegraph, telephone. Okay, that's why we see that this 5G with the telecommunication industry now is launching 5G. Even if you have taken the wireless connection of certain companies, they provide 5G connections now in India. So they are doing it through a new technology like fiber. Previously, they used to give the wireless Wi-Fi connection through a wire. Now it is using a 3-layered fiber, so that the internet connection we can get, that will be of high speed. Not only the speed of 4G, the speed will be more than 4G speed. Then international cooperation in matters connected with the telecommunication, including matters relating to the international bodies. So in the international cooperations also, telecommunication is connecting us. Now, how? Like if there is certain, if there is a meeting between Biden and means between the president of USA and Prime Minister of India. So it is not humanly, it is not possible right now in the situation of COVID that the president of America will come here. Okay, or rather the Prime Minister of India will go there. So they are doing a teleconference meeting. Through that, they can make new relation between India and USA. Okay, I'm just giving you one example. Then financial assistance for the furtherance of research and studying. Financial furtherance of research and study in telecommunication technology, and for building up adequately trained manpower for telecom program, so that there is a adequately manpower made for the telecom program, that is more employment generation in the telecom industry, because telecom industry we see it's a service sector.
Telecom industry is mainly a service sector. Okay. So, and India, after agriculture, the largest sector in India is the service sector. In economy, have you gone through that primary sector, secondary sector, tertiary sector? Okay. Have you gone through these terms in economics? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. So you might be knowing that in India, the service sector is the largest sector. Okay, so and telecom industry provides the largest service sector. So this is very helpful for the employment generation also. Then procurement of stores and equipment required by the Department of Telecommunication. Okay, whatever the stores or equipment that is required for the telecommunication industry, that are also seen by the Department of Telecommunication. Execution of work, purchase and acquisition of land. सोचो अगर कहीं पे नया सैटेलाइट, नॉट सैटेलाइट, कहीं पे अगर सोचो कि नया टावर बैठेगा, now it will be decided by the company, suppose Geo, but again it has to be seen by Department of Telecommunication. That is this location good for setting up a tower? So Geo has to first take the permission from DOT and then it can establish its tower there. Then promotion of standardization, research, private investment and development. So obviously the research in the telecom industry goes on. Like in the, don't think that the after coming 5G, the research will stop. They will start developing how to generate more speed in the internet. Okay, like not only because internet not only provides us to give see the video, internet helps us in many ways. Okay, to gather education, to gather knowledge. Okay, so the research in telecommunication, this also seen by DOT, Department of Telecommunication. Now what are the acts we see? Now there was first act was during the British era, and that is Indian Telegraph, 1885. Indian Wireless Act, 1933. So can you tell me this just out of out of this science and technology, that why revolt of 1857 cannot become the national revolt or national struggle of independence? So because sir, it Sir, there was. doesn't spread to all parts of our country. Sorry, Aditya, please Uh, repeat once more. it did not spread to, sir, it did not spread to all parts of our country. Okay, 1 point. Anyone else? Orghodip, we were telling something. Sir, there was no unified goal. No Each had unified their goal. own. But tell me that why I Sir, asked this lack of question is now. communication. Sir, lack Yes, of communication. communication, lack of communication, and that's why we see that Mahatma Gandhi became very famous, because during that time already a communication setup was there within India. But because see, Indian Telegraph Act came in 1885. We will not go into details of all this act, but you should know at least when the first act came. The first act came during British era. Then Indian Wireless Act, 1933. Then TRI came into existence from 97 and Information Technology Act in 2000. So these are certain previous act. If new acts come related to this, then all the provisions of those acts becomes very important. Now coming to
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी। Under this also we see that there is a minister of state, minister of state. Under all these cabinet ministries there is minister of state. Under that there is a secretary. Remember the difference. Under minister of state there is a secretary, but under ministry of communication there is a ministry of state, and under that there is a secretary of department of telecommunication and chairman of digital communication commission. So this is the difference, remember. There is also secretary, but here we have only a post called secretary, and under this all the departments group and their heads in meeting, attached offices like National Information Center, Informatics Center, then autonomous societies. What is stock directorate? Anyone know? STOC, stock directorate. It's a standardization, testing and quality certification directorate. Then autonomous society is there, CDAC, CMAT, NET, many are there. Okay, so just remember this for 6 categories. Okay, now companies, there is public limited company like CSC, e-governance services in India. It provides the e-governance in India. Okay, like especially in the rural areas. There are also certain statutory organizations. Now, what are their vision? Their vision is for e-development. As the engine for transition into a developed nation and an empowered society. E-development of India, electronically development of India. Okay, that's why in the space technology, if you have remembered that we were studying that government is trying to provide internet in the rural areas, okay, through the satellite, because in the rural area there is devoid of this towers, this network, and so government is trying to provide a free Wi-Fi kind of thing. Okay, there will be a Wi-Fi station which will connect with the satellite and will collect the signal and provide the Wi-Fi connection in those rural areas, so that government can connect with the rural area. सपोज सोचो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तुम लोग आईएएस बनने के बाद, तो तुम लोग कोई सपोज ये कोरोना का सिचुएशन अराइज हुआ, ठीक है, तो कोरोना का सिचुएशन अगर अराइज हुआ है तो तुम लोगों को अगर सारे जो पंचायत एरिया है, मेनली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर पंचायत एरिया जो है, तो विलेजेस होगा, तो वो विलेजेस में सारे पंचायत के लोगों को साथ अगर मीटिंग करना हो तो कैसे करोगे, बोलो। सर ऑनलाइन। हाँ, लेकिन विलेज में तुम्हें इंटरनेट कैसे मिलेगा, बोलो। तो इसी के लिए, हाँ ऑनलाइन तुमने सही बोला। तो क्या होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ये करने की कोशिश कर रहा है ताकि अगर कभी ऐसे कोविड इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुआ, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है, वो कोविड भी हो सकता है या कोई और सिचुएशन भी अराइज हो सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे विलेज घूम के सारे पंचायत को ट्रेनिंग दे। It is not possible, even it is not possible for the BDO also, block development officer also. So what they will do, they will connect through this online platform with all the panchayat,
अभी तो हर एक पंचायत में कंप्यूटर भी नहीं है। ऑनलाइन मीटिंग तो तब कर पाएगा ना जब कंप्यूटर होगा। अभी तो हर किसी पंचायत में कंप्यूटर ही नहीं है। तो हर एक पंचायत में कंप्यूटर रहे, और कंप्यूटर के साथ उस रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी रहे, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी रहे, ताकि ऐसे कोई क्राइसिस सिचुएशन रहे तो उसको कॉम्बैट कर सके। दैट इज कॉल्ड ई डेवलपमेंट। ओके, then what is its mission? Its mission is to promote e-governance. I explained just now what is e-governance: promoting the inclusive and sustainable growth of electronics, IT and ITES, information technology and electronic service industries, enhancing India's role in internet governance. इंडिया का जो रोल है इंटरनेट यूज करने में, गवर्नेंस में, अभी क्या होता है इसका और भी एनहेंस करें। अभी सोचो इंटरनेट का क्यों एक इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज यू सी अ पुलिस ऑफिसर, ओके, जो तुमको मतलब सपोज अ ट्रैफिक पुलिस बिना वजह तुमको फाइन कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? अभी उसका वीडियो निकालोगे, वीडियो निकाल के तुम ऑनलाइन में दे दोगे, ठीक है, मतलब इफ यू अपलोड इट इन फेसबुक और इफ यू अपलोड इट इन यूट्यूब, तो क्या होगा कि सबको पता चल जाएगा कि ये ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे किया है। इवन द ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज विल गेट टू नो अबाउट द फैक्ट एंड दैट ट्रैफिक पुलिस मे गेट डिसमिस्ड और मे गेट सस्पेंडेड फ्रॉम हिज जॉब। तो सब क्या करेगा? सबको अगर ये फियर रहेगा कि हम अगर करप्शन करेंगे हमारे जॉब के अंदर तो कोई हमारा ऐसे वीडियो निकाल के इंटरनेट पे डाल देगा एंड देन आवर जॉब विल बी एट स्टेक। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम करेगा। Even the police, the traffic police, all will get fear to take the bribe. Okay, that's why it will enhance India's role in the internet governance and adopting a multi-pronged approach that includes development human resources. जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ई गवर्नेंस का। जैसे अभी जो हमारा जो एलपीजी का सब्सिडी मिलता है, पहले क्या होता था? पहले ये एलपीजी का सब्सिडी जो सिलेंडर ले रहा है उस टाइम पे डिडक्ट करके डिस्काउंटेड अमाउंट में ही सिलेंडर दे दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, जो डोमेस्टिक प्राइस है सिलेंडर्स का, एलपीजी सिलेंडर्स का, उसी डोमेस्टिक प्राइसेस में कमर्शियली यूज होता था। जो ये होटल्स रेस्टोरेंट्स है ये भी ऐसे डोमेस्टिक प्राइसेस में खरीद लेता था। तो इससे गवर्नमेंट का नुकसान होता था क्योंकि गवर्नमेंट एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी देता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि पर सिलेंडर साल में तुमको एक ही सिलेंडर मतलब साल में तुमको 12 सिलेंडर मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट 12 सिलेंडर्स ओनली। पहले तो जितना चाहे सिलेंडर लो तुम उसमें सब्सिडी मिलेगा। अभी सिर्फ 12 सिलेंडर्स ही मिलेगा, मतलब एक महीने का एक सिलेंडर। और उसके ऊपर जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली जो तुम्हारा आधार कार्ड अटैच्ड है, वो मतलब जिसके नाम से वो एलपीजी सिलेंडर है, उसी की बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी। तो इसका एक दो बेनिफिट है। एक तो कॉमन मैन को पता चलता है कि गवर्नमेंट इतना अमाउंट सब्सिडी देता है। पहले तो आम जनता को पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। दूसरी बात है कि अभी जो एलपीजी सिलेंडर है ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा क्योंकि अभी लिमिटेड नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, और ऊपर से जिसका नाम से वो सिलेंडर है उसी के बैंक अकाउंट में सब्सिडी जाएगा। तो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का जो मनी है वो वेस्ट नहीं होगा। सर हाँ बोलो सर, बट इसमें एक चीज तो ये है कि सर ब्लैक मार्केटिंग तो हो रहा है अभी। कैसे हो रहा है, सर बोलो। मैंने तो कितने बार देखा है कि मतलब जैसे सिलेंडर चाहिए तो जो डिलीवरी करने आते हैं वही लोग जैसे अभी क्या हो रहा है कि 869 या 900 के अराउंड देना पड़ता है जिसका सिलेंडर जिसको ऑफिशियली जिसको मिलता है, तो उसमें से कुछ पैसे उसको शायद 90 सब्सिडी या में 100 रुपीज शायद सब्सिडी मिलता है ना। अभी बहुत कम, हाँ सब्सिडी बहुत अभी कम हो गया या वो भी शायद अभी नहीं मिल रहा है। हाँ तो वो मिलता है, तो जो डिलीवरी वाला है वो जैसे दूसरे को, जैसे मेरे की
आसपास में किसी को देने आया, तो अगर और जैसे कोई यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, घर पे ही कुछ बना के डिलीवरी करता है, तो वो उसको सर मैं देखता हूँ ब्लैक में दे देता है 1000 रुपये में, 1100 रुपये में। कभी अगर आप इमरजेंसी में बोलते हैं उसको तो वो 1200 में देता है, या फिर हाँ हाँ मैं बोलता हूँ, लेकिन वो देता है तो ठीक है, लेकिन वो जो प्राइस है ना, तो वो प्राइस तो डोमेस्टिक से ज्यादा ही है, और ऊपर से वो जो सिलेंडर लेता है दैट इज अनअकाउंटेड, उसका जो गैस बुक है उस पे ये नोटिफाइड नहीं होता, और जो सब्सिडी का मनी गवर्नमेंट हमारे बैंक अकाउंट में देता है, वो जो ऐसे बोल के लेता है उसको ये सब्सिडाइज्ड मनी नहीं मिलता बैंक अकाउंट, समझे? ब्लैक तो होगा ही, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ सब्सिडी का मनी गवर्नमेंट जो दे रहा है, ये तो वेस्टेज नहीं हो रहा है। जो ब्लैक में ले रहा है उसको तो सब्सिडाइज मनी नहीं मिल रहा है, उसको तो ऊपर से 100-200 एक्स्ट्रा ही देके सिलेंडर खरीदना पड़ता है, समझे आदित्य? यस सर। तो वही दे, क्योंकि सब्सिडी का मनी अगर लॉस होगा तो फिर से तो ये बर्डन आम जनता पर ही आएगा, बिकॉज द सब्सिडी गवर्नमेंट इज गिविंग फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी। ऊपर से प्रोमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। सो जैसे मोबाइल कैसे था पहले, मोबाइल पहले था कि उसपे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट था, इफ यू हैव सीन द प्रिमिटिव मोबाइल फोन्स दैट यूज्ड टू बी ब्लैक एंड व्हाइट, और यस सर। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोन से आज हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। Can't we say that these are the result of research and development and innovation? ये डेवलपमेंट और इनोवेशन का ही रिजल्ट है। मैं अभी लैपटॉप क्लास ले रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर मैं बाहर रहता तो मैं मोबाइल से भी ये क्लास ले सकता था। A smartphone have all the capability that, not I will say all, but at least it can do the work of a laptop, a computer, ठीक है? तो एक स्मार्टफोन में भी अभी उतना कैपेबिलिटी रहता है कि उससे भी हर एक कंप्यूटर का काम तुम कर सकते हो। So that is the result of the research, development and innovation. So ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये इसको प्रमोट करता है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। देन enhancing efficiency through digital services and ensuring a secure cyberspace. So it is ensuring efficiency through digital services, like हम डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं, ठीक है? सिर्फ पेमेंट नहीं, हम डिजिटली बहुत कुछ करते हैं। पहले क्या होता था, यूपीएससी का फॉर्म जो जमा देने के लिए जाते थे ना, तो ये तो ऑफलाइन में देना पड़ता था। यू हैव टू बैंक से रिसीप्ट निकालना पड़ता था, फिर वो रिसीप्ट के साथ हमें ऑफलाइन वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, फिर उसको एनवेलप में डाल के फिर पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैम्प डाल के फिर उसको भेजना पड़ता था। इससे तो कभी ऐसा होता था कि टाइम पे अगर वो फॉर्म नहीं पहुंचता था तो वो साल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था उस एस्पिरेंट के लिए। लेकिन अभी ये कितना इजी हो गया है, तुम घर पे ही एकदम कंप्यूटर के सामने बैठ के फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तुम ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पूरा जो 100 रुपीज का पेमेंट है वो कर दे रहे हो। सो इट इज बिकम वेरी इजी एंड स्मूथ, and these are all the digital services that are being provided by the Ministry of Electronics and Information Technology. Clear? Now what are the objectives? ये जो हमने पढ़ा इसका मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ई लर्निंग। अभी तुम ऑलरेडी योर इंस्टीट्यूट इज ओपन GOIS, ठीक है, फिर भी तुम लोग ऑनलाइन में क्लास कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑनलाइन में और भी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है कि वहां तुम्हारे घर से इंस्टीट्यूट जाने का जो टाइम है, ठीक है, सपोज इट इज टेकिंग 1 आवर टाइम, ठीक है, तो ये टाइम तुम्हारा सेव हो रहा है, जाने का 1 घंटा, आने का 1 घंटा, ठीक है। ऊपर से तुम घर से निकलोगे, ड्रेसअप करोगे, रेडी होगे, उसके लिए अलग से 1 घंटा, फिर घर में आके थोड़ा सा फ्रेश होने में, सब कुछ करने में 1 घंटा, 4 घंटा तो बर्बाद। दिस 4 आवर यू कुडंट स्टडी इन अ होल डे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन क्लास करते हैं
तो इससे क्या होता है, तुम घर पर ही हो, यू आर सिटिंग एट योर कंफर्ट जोन ओनली, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें अलग से क्लास के लिए ड्रेसअप या रेडी होके आना नहीं पड़ता, तुम्हारा जो कन्वेंस, जो जर्नी का जो टाइम है वो बच जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो 4 घंटा वेस्ट होता था तुम्हारा इंस्टीट्यूट आने में, ये तुम घर पे रह के ऑनलाइन क्लास करोगे तो ये तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है। तो ये 4 घंटा तुम डेली ज्यादा पढ़ सकते हो। सो दैट इज ई लर्निंग। नाउ एवरीथिंग इज बीइंग डन थ्रू दिस ई लर्निंग। Second, coming to e-security. Electronic security has become very important. अभी देखो, हम अगर लैपटॉप बोलो या मोबाइल फोन्स बोलो, ठीक है, हमारा सारा इंफॉर्मेशन अभी मोबाइल में रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बैंकिंग पासवर्ड, नेट बैंकिंग का, सबका मोबाइल में रहता है। तो अगर हमारा मोबाइल फोन सिक्योर नहीं होगा, इफ वी कैन नॉट लॉक द मोबाइल फोन, और वो मोबाइल फोन चोरी हो गया, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा बैंक का पासवर्ड, नेट बैंकिंग का यूजर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, सब कुछ उस चोर को मिल जाएगा, तुम्हारा बैंक पूरा खाली हो जाएगा। दैट्स व्हाई ई सिक्योरिटी हैज बिकम अ मेन कंसर्न नाउअडेज। जितना डिजिटल स्पेस में डेवलपमेंट होगा, ई सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस उतना ही बढ़ेगा। जितना डिजिटल ट्रांजैक्शंस होगा या डिजिटल स्पेस में डेवलपमेंट होगा, ई सिक्योरिटी को भी उतना ही ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर? Then internet governance, that is governance through internet, that I already explained कि पंचायत को अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, सोचो अगर किसी एरिया में फ्लड आ गया है, तो उस एरिया में पर्टिकुलर तुम लोग ही तो बनोगे, मैं ये एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ, तुम लोग ही आईएएस के बाद कलेक्टर बनोगे। तो कलेक्टर होके तुम उन सारे जो फ्लड हो गया है उन जगह पे कैसे तुम रिसोर्सेस पहुंचाओगे, तुमको फूड पहुंचाना है, वहां से लोगों को रेस्क्यू करना है, तुम खुद तो जाके नहीं करोगे, यू हैव टू कनेक्ट विद द रेस्क्यू टीम। ओके, इंडियन आर्मी से कनेक्ट करना पड़ेगा, वो आएगा रेस्क्यू करेगा। तो तुम वो कैसे करोगे? दैट इज थ्रू इंटरनेट। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन तो हर एक दिन हो रहा है। मोबाइल फोन में या कंप्यूटर लैपटॉप में हम देखेंगे कि हर एक नए साल में, सपोज कंप्यूटर नाउ इट इज, previously it used to be have a 2 core memory, now it is using octa core। पहले 4 core आया, उसके बाद 8 core आ गया सीपीयू में। तो ये क्यों डेवलपमेंट हर दिन हो रहा है? पहले क्या होता था, पहले हमारे जो ये मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन, पहले तो जब स्मार्टफोन पहले निकला उस टाइम it doesn't used to have a selfie camera, that is the front camera, it only used to have a rear camera। but with time we see that people के सोचने लगे कि रेयर कैमरा से ज्यादा तो ये जो फ्रंट का कैमरा है ये इंपॉर्टेंट है। इससे, क्योंकि तुम सोचो फैमिली का हर एक मेंबर अगर कहीं घूमने गए, तो तुम हर एक लोग अगर हर एक का पिक्चर क्लिक करोगे, सब सब एक साथ मिलके कब पिक्चर क्लिक करोगे? तो उसके लिए सेल्फी कैमरा और भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए मोबाइल फोन जितना डेवलप हो रहा है, हम देख रहे हैं कि उसका कैमरा, उसका मेमोरी, उसका प्रोसेसर, सब कुछ डेवलप हो रहा है हर एक ईयर। तुम ये नहीं बोल सकते कि इस साल अगर एक मोबाइल निकला जिसका फ्रंट कैमरा, सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, 108 मेगापिक्सल, तो फॉर श्योर 2022 आते आते तुमको एक सेल्फी कैमरा 500 मेगापिक्सल का भी मिल जाएगा, क्योंकि दिस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी डेवलपिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। और ई इंडस्ट्री, obviously this e-industry is related to this। जितना इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बढ़ेगा। आई होप दिस 6 ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर। ई-गवर्नमेंट, अगेन प्रोवाइडिंग ई-इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरी ऑफ ई-सर्विसेज। ई-इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर रहा है? पहले क्या होता था, हम जब स्टेशन से जाते थे रेलवे में, we used to have a Wi-Fi, but that was provided by Jio or Google। But now you see the Wi-Fi is the indigenous Wi-Fi of the railway. It is railware. Okay, the Wi-Fi that is being given in the railway station, it is the indigenous Wi-Fi of railway। रेलवे खुद का वाईफाई यूज करके
रेलवे में देते हैं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया ताकि सारे रेलवे स्टेशन में वाईफाई रहे। तुम सोचो ना, तुम जब बच्चे थे, व्हेन यू वर इन योर स्कूल, have you ever imagined that there will be Wi-Fi, free Wi-Fi in the railway station? No, but now you are getting free Wi-Fi. So that is the e-governance. Government is trying to give all, provide all the electronic infrastructure so that these electronic services can be provided. Then e-industry, मोबाइल इंडस्ट्री बोलो, लैपटॉप बोलो, या कोई सर्विस सेक्टर भी बोलो, कोई कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, दैट इज आल्सो कमिंग अंडर ई इंडस्ट्री. ओके, मींस IT industry, E industry, we cannot differentiate. IT industry itself is coming under E industry. Then innovation or research and development. So implementation of research and development framework enabling creation of innovation and research development. So ये Ministry of the Electronics and Information के अंदर ही ये innovation और research development को भी promote करता है. ठीक है, इस ये इलेक्ट्रॉनिक और रिसर्च के वजह से हम लोग अभी ड्रोन, वी हैव डेवलप्ड ड्रोन, जिसकी वजह से द उरी सर्जिकल स्ट्राइक हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो कमिंग अंडर दिस मिनिस्ट्री. ई लर्निंग, सिर्फ एडुकेशन नहीं, तुम कोई भी चीज अभी इंटरनेट के थ्रू जान सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम कुकिंग, सिंगिंग, dancing, elocution, everything you can now learn from E. That is internet. Through your electronic gadget, that is mobile phone, computer, you can learn any skill. अभी तो ऑनलाइन में, जैसे इंजीनियरिंग में तो तुमको कॉलेज जाना पड़ता है डिग्री लेने के लिए, वो सब नहीं हो, लेकिन इंजीनियरिंग का ट्यूशन सब कुछ अभी ऑनलाइन में मिलता है. ई सिक्योरिटी, securing India's cyberspace. This way, this is also the research is still going on. India has not become so much advanced in securing India's cyberspace, and that's why we see that there are many cyber crimes that are going on in India. But India is still trying its best to do this secure. इसीलिए हमेशा देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पे ऐसे SMS आते हैं, जिसी whichever बैंक अकाउंट्स यू हैव, उसमें से SMS आता है कि कोई भी अगर आपको फोन करके, यू हैव गॉट दिस टाइप ऑफ SMS ना, टेल मी दैट, कोई भी अगर आपके बैंक का OTP या कुछ मांगे तो उसको OTP मत देना, बिकॉज बैंक स्टाफ विल नेवर आस्क यू फॉर योर OTP. ऐसे वो लोग अवेयरनेस क्रिएट करते थ्रू SMS. नाउ दिस SMS इज आल्सो कमिंग अंडर दिस ई सिक्योरिटी. And the most important point is e-governance. It's yes, internet governance. E-governance, internet governance is the same thing. Because if there is a good internet governance, ना, then सोचो प्राइम मिनिस्टर खुद हर एक स्कीम के काम को खुद मॉनिटर कर सकता है. That is through internet governance. Even a district collector can govern all the work, all the development work going on his area through this internet. Suppose अगर ग्राम सड़क योजना में कोई रोड हो रहा है, ठीक है, एक विलेज में, वो रोड ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, मटेरियल का क्वालिटी, वो सब कुछ इंटरनेट के थ्रू एक कलेक्टर भी चेक कर सकता है, बिकॉज कलेक्टर रिमेन्स वेरी बिजी. ओके, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विलेजेस, तो वो हर एक विलेज में जाके पर्टिकुलरली वहां पे रोड ठीक मटेरियल से ठीक टाइम से खत्म हो रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर नहीं कर सकता. लेकिन अगर इंटरनेट सर्विस रहे तो इंटरनेट के थ्रू वो इसको मॉनिटर कर सकता है. देन पॉलिसी, व्हाट आर इट्स फंक्शन. ये मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव्स अभी क्लियर हो गया. अब ये मिनिस्ट्री का फंक्शंस क्या है. Policy matters relating to information technology, electronics, internet, all matters other than licensing of internet service provider. ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को लाइसेंस कौन देता है. मैंने यहाँ लिख दिया है, अदर देन प्रोवाइडिंग लाइसेंस टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ये किसके अंडर आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज दिस लाइसेंस इज बीइंग गिवन बाय TRAI, and TRAI is under Ministry of Communication, not under Ministry of
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना कौन से डिपार्टमेंट कौन से अंदर है, बिकॉज दिस मेनी अ टाइम्स दिस गेट कंफ्यूज्ड कि ट्राई किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर है या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक है, तो पॉलिसी मैटर दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेट, ये सारे पॉलिसी मैटर्स डिसाइड करता है ये मीटिंग। Assistance to other departments in the promotion of e-governance, e-commerce, e-medicine, infrastructure। ठीक है, कोई भी अगर e-medicine, जैसे हम लोग अभी एक ऐप आता है ना, क्या नाम है उसका, सस्ता सुंदर, दैट्स अ e-medicine प्लेटफॉर्म, उससे मेडिसिन मिलता है। e-governance we already have understood, e-commerce वेबसाइट्स है जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, तो इन सारे जो डिपार्टमेंट्स है इसके अंदर, तो ये डिपार्टमेंट्स इन सारे ई प्लेटफॉर्म्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रमोशन ऑफ इंटरनेट एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, इंटरनेट और आईटी एनेबल्ड सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, इसको प्रोमोट करता है। एंड मैटर्स रिलेटिंग टू द साइबर लॉज, अगर साइबर क्राइम का भी कोई इश्यू है, दैट विल आल्सो कम अंडर दिस मिनिस्ट्री, that will not come under the Ministry of Communication. Matters relating to promotion and manufacture of semiconductor devices in the country. Semiconductor devices in the country मतलब जिससे हमारा मोबाइल के अंदर जो सर्किट होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर्स, माइक्रो ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ये सारे तो सेमीकंडक्टर से तैयार होते हैं ना, तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करते हैं। इंटरैक्शन टू द आईटी रिलेटेड मैटर्स विद इंटरनेशनल एजेंसीज एंड बॉडीज, जो भी आईटी रिलेटेड मैटर्स है विद इंटरनेशनल एजेंसीज, लाइक यूएन अगर कोई रूल बना रहा है, ठीक है, यूएसए से अगर कोई नया कोई यूएसए का कोई नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, तो वो इंडिया अगर उससे कम्युनिकेट करेगा तो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल कम्युनिकेट। इनिशिएटिव ऑन ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड एंड मैटर्स रिलेटिंग टू डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। डिजिटल डिवाइड, जैसे इंडिया में रूरल और अर्बन एरिया के बीच डिजिटल डिवाइड हो गया, अर्बन एरिया में तो डिजिटल बहुत सब कुछ ही है, लेकिन रूरल एरिया में एक डिवीजन हो गया है, तो वो जो ब्रिज हो गया है उसकी गैप को फिल अप करेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और डिजिटल इंडिया का जो भी प्रोग्राम्स रहेगा दैट विल आल्सो कम अंडर दिस मिनिस्ट्री। प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, testing, quality in IT and standardization procedure for IT application and task। कोई भी टेस्टिंग होगा आईटी टेक्नोलॉजी का, उसका क्वालिटी चेकिंग सब कुछ ये करेगा। इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसका कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इवन नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइजेस, इन सब कुछ का डेवलपमेंट आएगा अंडर मीटी। Ministry of Electronics and Information Technology. Measures for promoting IT export and competitiveness of the industry, ये इंडस्ट्री और कैसे डेवलप करेगा ना। कमिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एक आया है इसके अंदर और एक आया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वी विल स्टडी अबाउट दिस एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन मींस, अगर तुम लोगों को पता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तुम लोगों ने पढ़ा है पॉलिटी में। हैव यू स्टडीड अबाउट दिस एक्ट? टेल मी। आदित्य, नो सर। अर्घदीप, प्रजापति, वैशाली, is this Arghadip? Okay. So this act generally gives you the right of information. That means you have the right to know. Suppose अगर तुमने यूपीएससी एग्जाम दिया, ठीक है, तो यूपीएससी एग्जाम में तुमको कितना नंबर मिला है, means you want to see that how much
number you have got in your all the mains paper, ठीक है, तुम तुम्हारा पूरा एकदम मेंस पेपर में कितना कितना कौन से क्वेश्चन में कितना कितना मार्क्स मिला है वो जानना चाहते हो, सो यू हैव टू फाइल अ केस अंडर दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। सो ये भी इस मिनिस्ट्री के अंडर, और एक आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो अभी नया कोई एक्ट नहीं आया, तो बट यू शुड नो एटलीस्ट दैट दिस एक्ट हैज बीन फॉर द बेनिफिट ऑफ विच ministry, that's why I have given the name. No need of knowing the detail of this act, information technology, but right to information act is coming entirely under polity. इसका क्या क्या प्रोविजंस है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन में उसमें सिर्फ यही था कि यू कैन फाइल अ केस, मीन्स यू कैन फाइल अ कंप्लेन टू नो अबाउट वॉट एवर द मार्क्स यू आर गेटिंग इन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। तो तुम राइट टू इंफॉर्मेशन के दो थ्रू तुम वो फाइल कर सकते हो केस, और फिर तुमको वो पेपर्स भी मिल जाएगा कि किसमें तुमको कितना मार्क्स मिला। नाउ कमिंग टू बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक्स हमें समझने की जरूरत है, ठीक है, कि कंप्यूटर कैसे एग्जिस्ट हुआ। So we will come to know about the history and generation of computer, types of computer, components of computers, what a supercomputer and its uses, and computer terminologies. तो कंप्यूटर ऐसे ही तो नहीं आया, पहले क्या आया था, ये क्या है, कोई बोल सकते हैं व्हाट इज दिस? यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस इन स्कूल, बट स्टिल टेल मी व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलता है? एबाकस सुने हो? हाँ सर। So this is the primitive form of computer. इसमें कुछ बिट लगा हुआ दिया जाता है जिससे वो लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम में इसको डेकोरेट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होता है। सो दिस इज आई एम टेलिंग अबाउट 2500 BC, मतलब ये बिफोर क्राइस्ट में, बिफोर कॉमन एरा। तो 1500 to 1600 में आया एक नेपियर्स बोन, इट्स विजिबल और नॉट, नेपियर्स बोन। और उसके बाद आया 1600 AD में आया स्लाइड रूल, मतलब उसमें कोई यूनिट नहीं दिया है, बस रूलर की तरह, जैसे रूलर होता है ना लकड़ी का या स्टील का, उसमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, बस नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है, तो रूलर। उसके बाद आया मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो वैसे बहुत कुछ आया, लिबनिज मैकेनिकल मल्टीप्लायर, कोलमन कैलकुलेटर। एटलीस्ट यू शुड नो द क्रोनोलॉजी, ओके, you don't need to know any details of all these instruments, इन लोगों का डिटेल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर क्रोनोलॉजी आया, ठीक है, कि नेपियर्स बोन पहले था या एबाकस पहले इन्वेंट हुआ था, स्लाइडर रूल पहले इन्वेंट हुआ था, ठीक है, ऐसे दे देते हैं ना कि डेकोरेट अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी, 1 2 3 4 करके दे देंगे, फिर ABCD में लिखेंगे 1 2 3 4 2 3 4 1, तो ऐसे दे सकता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। और फिर आया चार्ल्स बैबेज का 1821 में द ह्यूज कंप्यूटर। तो पहले क्या होता था, एक वैक्यूम ट्यूब था, इसमें पूरा वैक्यूम ट्यूब था, और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक मेटालिक alloy type of thing that used to be given, और इस वैक्यूम ट्यूब के थ्रू ये कंप्यूटर की तरह काम करता था। पहले ये तैयार हुआ बिफोर कंप्यूटर केम इनटू एग्जिस्टेंस, ओके। सो फर्स्ट जनरेशन वाज देयर, और ये इतना ह्यूज था, ये इतना ह्यूज था, यू कैन सी इट्स इट इज टेक ऑलमोस्ट अ रूम, ये पूरा रूम ले रहा है, इस अंदर ये सारे वैक्यूम ट्यूब है इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ से कुछ वो लोग डिस्प्ले कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये वैक्यूम टेस्ट में ये बहुत ही था और बहुत हीट जनरेट करता था। जब इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है, कैन यू इमेजिन दैट ये बहुत ही कम्बरसम था टू हैंडल। मतलब ये कोई एक हैंडल नहीं कर सकता था, 10 12 10 to 20 people used to be needed to handle this first generation computer during 19 which was during 1946 to 59, जिसको एडवैक भी बोला जाता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन ये एक वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है, जिसके अंदर एक मेटालिक एलॉय दिया जाता था, ठीक है, और ये बहुत लार्ज साइज का होता था। ये लार्ज साइज का, ये बहुत हीट जनरेट करता था। एक वैक्यूम ट्यूब है, उसके अंदर एक मेटल है, वहां से हम इलेक्ट्रिक पास कर रहे हैं, तो वो तो हीट हो जाएगा, हीट होके वो बहुत हीट जनरेट करता था। और मतलब इतने बड़ा मशीन में सिर्फ कुछ ही डेटा लोड किया जा सकता था, मींस इट इज इन किलोबाइट केबी। अभी तो जीबी है ना, अभी तो टीबी में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इतने ह्यूज मशीन में सिर्फ केबी किलोबाइट में कुछ डेटा ही स्टोर किया जा सकता था। तो इससे तुम लोगों को ये अंदाजा हो सकता है कि ये लिमिटेड कमर्शियल यूज, मतलब ये क्या हर कोई अफोर्ड कर पाएगा? बोलो, ये जो कंप्यूटर है हर कोई अफोर्ड कर पाएगा? बोलो, नो सर। टेल मी। ये जो इतना बिग साइज है, तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई इट इज अ लिमिटेड कमर्शियल यूज था, क्यूम्बरसम था, और ये और एक जो डिसएडवांटेज था कि बहुत हीट जनरेट करता है, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज मेड, हाउ how was the first computer? So you must at least know the term that it was a vacuum tube based. उसके बाद आया ट्रांजिस्टर। ऐसे ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता था जो इससे तो मतलब इट इज स्मॉलर देन दिस, ये इससे साइज में छोटा है और इतना हीट भी नहीं होता। ये क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब बहुत हीटेड हो जाता था, लेकिन ये उतना हीट भी नहीं होता था और बहुत, और इससे भी थोड़ा ज्यादा फास्टर था। इसमें अगर तुम एक काम करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है तो थोड़ा ज्यादा स्पीड से काम कर सकते हो। तो दिस सेकेंड जनरेशन, दिस वाज ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर फिट किया दिया हुआ है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, मतलब ये उससे छोटा है। वो अगर एक पूरा रूम लेता है तो ये रूम का आधा हिस्सा लेता है, ठीक है। इसमें भी प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ किलोबाइट में, ओनली किलोबाइट। इतना बड़ा मशीन में सिर्फ किलोबाइट में 1-2 किलोबाइट ही डेटा स्टोर किया जा सकता था। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप किया, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। अभी तक तो पूरी तरह से हम जो मॉडर्न कंप्यूटर यूज करते हैं वो डेवलप नहीं हुआ। तो ये कुछ लैंग्वेजेस जैसे बाइनरी सिस्टम दैट स्टार्टेड डेवलप। बाइनरी सिस्टम क्या है पता है ना? 0 1 0 1। कंप्यूटर तो सिर्फ यही समझते हैं, बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर को तो और कोई सिस्टम समझ में नहीं आता। तुम डेटा दो, कुछ भी दो, कंप्यूटर 0 1 0 1 करके ही समझे। तो ये था ट्रांजिस्टर। ये क्या था डिफरेंस इसके और वैक्यूम ट्यूब के बीच? कि ये इससे स्मॉल साइज था, उतना हीट भी नहीं होता था, ये डेटा स्टोर भी कर रख सकता था, लेकिन किलोबाइट में। इसके बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट, that is miniaturization added to the existing benefit enabled unthought possibility. क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, ऐसे सर्किट्स
जो अभी हम लोग जो सीपीयू वगैरह वो सब यूज करते हैं ना, उसमें ये सब मिनिएचर रहता है, दैट इज मिनिएचर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये 1964 टू 71 के बीच डिस्कवर हुआ। अभी तो हम इससे भी छोटा मिनिएचर यूज करते हैं। इससे क्या हुआ कि जो कंप्यूटेशन का स्पीड है वो इंक्रीज किया, रिडक्शन इन साइज हुआ, एंड पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन, अब मशीन का जो पावर कंजम्पशन है उसका भी रिड्यूस हुआ, क्योंकि ये एक सर्किट बोर्ड की तरह यूज होता है। एक सर्किट बोर्ड है, उसके अंदर अलग अलग चिप्स हैं, ठीक है, इससे ये चलता है। ये ट्रांजिस्टर से नहीं चलता, ये एक वैक्यूम ट्यूब से नहीं चलता। वैक्यूम ट्यूब मतलब सोचो ना, ये कितना इलेक्ट्रिसिटी लेगा वो। तो इसका जो डिजाइन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हायर लेवल लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं, मतलब ये और भी हायर लेवल लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं। मैग्नेटिक टेप्स है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर शुरू हुआ। तो अगर कोई पूछे कि कब से कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर शुरू हो, वैक्यूम ट्यूब से, ट्रांजिस्टर से, या इंटीग्रेटेड सर्किट से, तो हमेशा याद रखना कि इंटीग्रेटेड सर्किट से कंप्यूटर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट हमने पढ़ा, ये सर्किट को और भी छोटा कर दिया। छोटा करके क्या किया, एक सर्किट अगर इतना बड़ा होता था लार्ज, अब इतनी बड़ी सर्किट को छोटा करके इतनी जगह में कर दिया, एक माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। अब ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये वाला, इसके अंदर पूरा एक चिप है, मतलब ये इंटीग्रेटेड सर्किट का एक पार्ट की तरह है। इंटीग्रेटेड सर्किट अगर इतना बड़ा होगा तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट का इतना पार्ट जैसा होगा, ठीक है। इफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज दिस मच, तो ये माइक्रो प्रोसेसर इतना होगा। अभी हम जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, इट हैव दिस माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका वेरी लार्ज इंटीग्रेशन यूज में आया, और इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स का इन्वेंशन शुरू हुआ। तो याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर से ही माइक्रो कंप्यूटर का इन्वेंशन शुरू हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, जैसे पीसी हम लोग अभी जो यूज करते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। नेटवर्किंग पहले जो था, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इस पे नेटवर्किंग नहीं था। नेटवर्किंग क्या है पता है, लैन, एक कंप्यूटर के साथ और एक कंप्यूटर को कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट तक नहीं हुआ था। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, नेटवर्किंग सिस्टम आया कि एक कंप्यूटर के साथ और एक कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे लैन के थ्रू, ठीक है। अभी तो लैन वैन बहुत सारे नेटवर्किंग कनेक्शन है। तो ये डेवलप हुआ माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर से, और ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को भी समझ सकते। दैट मीन्स इट कैन अंडरस्टैंड द फोर्थ जनरेशन। अभी तो हम लोग कंप्यूटर देखते हैं क्या, अभी शायद कंप्यूटर जो 2021 में इट हैज गॉन टू 9th जनरेशन आई थी। अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो 9th जनरेशन तक भी समझ सकते हैं, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। उसके बाद आया 5th जनरेशन, दैट इज प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। इसमें क्या, इसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है। ये अभी तक पूरी तरह से वी कैन नॉट से इट इज कंप्लीटेड, बट इसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ये अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ। ये क्यों पावरफुल है, पहले क्या होता था, अगर हम कंप्यूटर को एक डेटा देंगे कि तुम 10 के साथ 5 मल्टीप्लाई करो, तो कंप्यूटर वो करेगा, 10 के साथ 5 मल्टीप्लाई करके बोलेगा 50। लेकिन अगर सोचो, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमें कोई प्रोग्राम देना नहीं पड़े, कंप्यूटर खुद से वो डेवलप कर ले, तो दैट वे इट विल डू बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उनको तो थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है ना, बोलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, जैसे जावा, सी प्लस प्लस। हाँ सर, पता है।
तो इससे क्या होता है, सपोज सोचो रेलवे में हम टिकट खरीदने जा रहे हैं, तो रेलवे में टिकट वो लोग सिर्फ, हम लोग बोलते हैं कि चलो हम शियालदह से बैरकपुर जाएंगे। शियालदह तो इनबिल्ट उन, अगर हम शियालदह स्टेशन से टिकट खरीद रहे हैं तो शियालदह तो उन सिस्टम में है ऑलरेडी, गिवन इन देयर सिस्टम। वो सिर्फ BARR ये टाइप करेगा और हमारा टिकट में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है कि 1 एडल्ट, द ट्रेन नंबर, या इफ वी आर गोइंग थ्रू एक्सप्रेस ट्रेन, ट्रेन नंबर वगैरह वगैरह सब लिखा रहता है, ठीक है। टाइमिंग ये सब वो लोग नहीं डालते। तो ये सब उसके कंप्यूटर में कैसे आता है, थ्रू द प्रोग्राम, थ्रू दैट जावा प्रोग्राम और C++, whichever program they have made, वो सिर्फ उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उस सॉफ्टवेयर में वो सिर्फ डेस्टिनेशन का नाम दे देता है और टिकट निकल के आ जाता है। तो इसमें तो हमें डेटा देना पड़ता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी कंप्यूटर आएगा कि वो खुद से ही वो प्रोग्राम डेवलप कर लेगा। उसको खुद ही पता चलेगा कि हम कंप्यूटर के सामने गए, उसमें कोई प्रोग्राम देने का भी जरूरत नहीं होगा, कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड एंड विल गिव इट्स आउटपुट। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। ये अभी तक नहीं आया, ठीक है। दिस इज द 5th जनरेशन कंप्यूटर दैट इज रिसर्च इज गोइंग, ओके। मैंने जो बोला 9th जनरेशन, वो 9th जनरेशन लैंग्वेज अभी चालू हो गया, ठीक है। 5th जनरेशन लैंग्वेज, 9th जनरेशन, लेकिन 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो ही अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। 5th जनरेशन अभी तक तो इसमें रिसर्च चल रहा है, ये पूरी तरह से अभी मार्केट में नहीं हुआ, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज कमर्शियली अवेलेबल। और इस पे तुम हाई लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में तुम्हारा खुद का नॉलेज भी रहेगा, ऊपर से कंप्यूटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल, तो वो कंप्यूटर खुद भी तुमको हेल्प करेगा प्रोग्राम लिखने में, क्लियर। और एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग मतलब कंप्यूटर के अंदर ऐसे स्विचेस रहते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने देखे हो साउंड बॉक्स, अभी भी शायद कंप्यूटर के साथ ऐसा साउंड बॉक्स आता है जिसका वॉल्यूम अप एंड डाउन करना पड़ता है, ये नॉब घुमा के। बोलो, देखे हो साउंड बॉक्स जिसपे ऐसा स्विच रहता है Yes sir, वॉल्यूम yes. अप एंड डाउन का। हाँ, तो वैसे वॉल्यूम अप एंड हाँ डाउन का स्विच है, तो ये कंप्यूटर भी वैसे ही है जिसके अंदर बहुत सारे नॉब्स हैं, ठीक है। ये पिक्चर में देखो, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे नॉब्स है जिसको तुम एडजस्ट कर सकते हो, जैसे घड़ी में होता है, ठीक है। दिस इज एनालॉग वॉच, जैसे घड़ी में होता है वैसे ही एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन capable of performing arithmetic functions on numbers which are represented by some physical quantities such as temperature, pressure, voltage। तो इसमें कुछ physical quantities रहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, और मतलब अगर टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि वो कुछ डिस्प्ले करेगा। अगर प्रेशर राइज हो गया, अगर वोल्टेज, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू दोज नॉब्स दैट आर गिवन बिहाइंड दिस कंप्यूटर, ओके। इसको एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है। देन केम द डिजिटल कंप्यूटर दैट वी यूज, डिजिटल कंप्यूटर, ओके, जैसे लैपटॉप, ठीक है। डिजिटल वॉच देखे हो, जैसे एप्पल का वॉच आता है, एमआई का वॉच आता है, डिजिटल वॉच, ठीक है। डिजिटल वॉच ये सब कैसे काम करते हैं, इसमें एक बाइनरी सिस्टम रहता है, ठीक है। मतलब ये अगर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, सपोज व्हाट इज द टाइम नाउ, अच्छा लीव इट, सपोज इट इज 10 AM, तो ये 10 AM तो डिस्प्ले करेगा डिजिटल वॉच, लेकिन इसके अंदर सिस्टम क्या चलेगा, वही बाइनरी सिस्टम 0 1 0 1। इस बाइनरी सिस्टम से ये काम करेगा और ये डेटा शो करेगा इट इज 10 AM। तो डिजिटल कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, हम कोई भी प्रोग्राम दे वो उसको 0 1 में ही ब्रेक करता है और उसके बाद हमें रिजल्ट देते हैं।
हम अगर कोई डेटा इनपुट करते हैं फिर उसको वो क्या करते हैं, 0 1 में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो हमें जब रिजल्ट देते हैं वो भी 0 1 में देते हैं, फिर वो जो कन्वर्टर है वो उसको 0 1 से हमारे रिजल्ट में जो हम लोग लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं वो 0 1 से कन्वर्ट होके आते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ ये बाइनरी नंबर समझ में आता है, 0 और 1। तो दिस इज द डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर। What is microcomputer? Microcomputer are the small, low-cost, single-user digital computer. It is a device with microprocessor, input unit, storage unit, and CPU. हम मोबाइल फोन को एक माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं। क्यों? हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक प्रोसेसर रहता है, एक इनपुट यूनिट रहता है, जैसे वो कीपैड से हम नंबर डायल करते हैं, हम कोई मैसेज डायल करते हैं। एक स्टोरेज यूनिट रहता है, हमारा मोबाइल का एक मेमोरी रहता है, और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी रहता है। हम हमारे मोबाइल के थ्रू अभी बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे पीपीटी स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, सब कुछ हम मोबाइल में बना सकते हैं। दैट वी कैन मेक बिकॉज आवर मोबाइल हैज अ सीपीयू, इट हैज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनसाइड इट। तो हम मोबाइल फोन को एक माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। This is the multitasking and allow terminals to be connected to their services. They have ability to connect with other mini computers and mainframe. तो ये क्या है? ये एक मिनी कंप्यूटर है, मतलब जिसके अंदर सब कुछ है, सीपीयू है, स्टोरेज है, लेकिन ये मिनी है, ठीक है, सब कुछ है, और ये नेटवर्किंग भी कर सकता है। दैट मीन्स ये और एक जो मिनी कंप्यूटर है इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है। सो याद रखना, माइक्रो क्या है? हमारा मोबाइल फोन, वी कैन से इट्स अ माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज लार्जर देन दैट, ठीक है, जो एक ही कंप्यूटर के अंदर सब कुछ है। उसके बाद आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये मेन फ्रेम, दिस इज अ बिग कंप्यूटर दैट डज ऑलमोस्ट ऑल द जॉब that other types of computers that are connected to it, large database and can be maintained, और इसका डेटाबेस मेंटेन किया जा सकता है। ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कि अलग से इसका एक फ्रेम है कंप्यूटर का, ठीक है, ये पूरा एक फ्रेम है, यहाँ से ये एक यूनिट है, इसमें डिस्प्ले यूनिट हम आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। और ये मेन फ्रेम के अंदर सब कुछ है, सीपीयू है, स्टोरेज यूनिट है, और इसके ये और भी जो भी अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है उसका भी फंक्शन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद जो कंप्यूटर आता है दैट इज सुपर कंप्यूटर। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर, हैव अ मल्टीपल प्रोसेसर, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। जैसे परम शक्ति, ठीक है, सैटेलाइट से सिग्नल जो कंप्यूटर कैच करते हैं, दोज आर सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, वो नॉर्मल कंप्यूटर्स कैच नहीं कर सकता। तो सुपर कंप्यूटर्स कैन ऑपरेट द सैटेलाइट्स, ठीक है। कोई अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन में है, जो भी कंप्यूटर सेटअप है जिससे वो सैटेलाइट को मॉनिटर किया जाता है, दोज आर सुपर कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स का क्या क्या यूनिट है? It has an input unit, it has a CPU, and it has an output unit. Okay. What is the input? Input मतलब जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करेंगे, जैसे कीबोर्ड। You must have studied all this thing in the school also, but this much basic is needed for your information technology. Like keyboard, mouse, even the camera, web camera, okay. Microphone is already attached in laptops, okay. This is scanner. इसके थ्रू हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इनपुट यूनिट। देन देयर इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है।
जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक मेन स्टोरेज रहता है जिसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, रैम भी रहता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मदरबोर्ड रहता है इसके अंदर, ठीक है। जो भी कंप्यूटर के अंदर फंक्शंस होता है, सपोज वी आर गोइंग टू डू एनी फंक्शन इन अ कंप्यूटर, हमें तो मॉनिटर से सिर्फ वो डिस्प्ले होता है, ठीक है, वी कैन से मॉनिटर अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन परफॉर्म करता है एक कंप्यूटर, वो सब कुछ परफॉर्म करता है थ्रू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू वो सब कुछ परफॉर्म करता है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या है, ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है, सपोज 10+1, ये कौन करेगा, 11, ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करेगा। एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक मेमोरी। ये जो 10+1 11 हुआ, ये स्टोर कहाँ करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा। और ये सारी जो फंक्शंस है, ALU अरिथमेटिक करेगा, AMU स्टोर करेगा। इसको सुपरवाइज कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट इसको सुपरवाइज करेगा। दैट मीन्स कंप्यूटर के अंदर तीन, CPU के अंदर तीनों यूनिट है, ALU, CU एंड AMU। ALU क्या करेगा, जो अरिथमेटिक जो लॉजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, वो अरिथमेटिक लॉजिकल पार्ट करेगा ALU, और मेमोरी क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। और ये जो दोनों फंक्शन है, इसको सुपरवाइज और इसको ऑपरेट कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट, CU। अब आता है कि आउटपुट कहां से निकल रहा है। आउटपुट निकल रहा है कहां से, मॉनिटर से, प्रिंटर से आउटपुट निकलता है। हम अगर कोई भी डेटा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में ऑलरेडी टाइप किया हो, टाइप हम इससे करेंगे कीबोर्ड से। कीबोर्ड क्या है, इनपुट। अब हमने टाइप किया, ये जाके कहां सेव होगा, CPU में, और CPU ही आउटपुट देगा किसको, प्रिंटर को, कि जाओ प्रिंट करो। फिर यहां से हमें आउटपुट निकलेगा प्रिंटर। सो आउटपुट यूनिट, सो इनपुट, CPU दैट इज द प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट। समझ में आया, बोलो यहां तक कोई क्वेश्चन, बिकॉज दिस आर वेरी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। थोड़ा एडवांस में हम लोग जाएंगे, लेकिन उसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा जरूरी है, ठीक है। मुझे पता है कि तुम लोगों को सबको अभी ये पता है, लेकिन फिर भी आई हैव टू इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स। टेल मी, यहाँ तक समझ में आया, आदित्य, यस सर, अर्घा, वैशाली, यस Yes sir, Yes, yes sir. sir. प्रजापति, ओके। तो अब आता है कि एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर से, ठीक है। कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या है साइंस में, लाइक इफ कंप्यूटर इज डूइंग अ साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग में तो बहुत बहुत ही कंप्यूटर का, नॉट ओनली इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन ईच एंड एवरी इंजीनियरिंग कंप्यूटर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और रिसर्च में तो जरूरत है। सपोज इफ वी आर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, for the designs you have to draw the diagrams through AutoCAD. Now when you are drawing engineering drawing, you have to take the help of a computer. तो इंजीनियरिंग में बहुत हेल्प करता है कंप्यूटर, साइंस में तो करता ही है, ठीक है। जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड दैट हाउ सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट लॉन्च मिशंस। रिसर्च में, बिजनेस, नाउ बिजनेस कैन नॉट गो विदाउट कंप्यूटर। तुम अभी देखो, एक हार्डवेयर का कोई दुकान है, किसी का अगर हार्डवेयर का भी एक दुकान है, हार्डवेयर मीन्स द सैनिटरी हार्डवेयर आई एम टेलिंग अबाउट, ओके। इसका भी अगर किसी का दुकान है, इसके पास कंप्यूटर है, वो वहां पे एक टैली का शीट खोल के सारे डेटा, मतलब किसका कितना उसका खर्चा हुआ, कितना उसका, मतलब पूरा जो उसका कमर्शियल जो उसका बिजनेस है, उसका पूरा डेटा वो कंप्यूटर में लोड रखेगा, ठीक है। तो बिजनेस के लिए तो कंप्यूटर इज मस्ट,
फॉर मेडिसिन ऑल्सो, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए तो कंप्यूटर चाहिए। एंड एडुकेशन, व्हाट वी आर डूइंग थ्रू इज कंप्यूटर, एडुकेशन के लिए कंप्यूटर इज मस्ट। एक बच्चा स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसको गूगल पे सर्च करना है और उससे प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर के थ्रू ही लेगा। तो एडुकेशन को बहुत हेल्प करता है कंप्यूटर। और गेम्स और एंटरटेनमेंट, इसके बारे में तो समझाने की जरूरत नहीं, तुम लोग जानती हो गेम्स और एंटरटेनमेंट कंप्यूटर कितना हेल्प करते हैं। तो इसका क्या एडवांटेजेस है? एक तो स्पीड, सपोज those who are from engineering background, you must be knowing engineering का जो ड्राइंग होता है ना, जैसे सिविल का, मैकेनिकल का, ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए तुमको कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होता है। यू नीड अ कॉम्पास, यू नीड अ बिग शीट ऑफ पेपर, ठीक है, पेंसिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट स्क्वायर स्केल्स, प्रोटेक्टर, डायगोनल स्केल, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। तब जाके तुम एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, सपोज इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ पाइप or a bearing, you are going to draw a bearing, ठीक है, तो इसके लिए तुमको परफेक्ट मेजरमेंट लेके वो ड्राइंग करना होगा। तो ये करने के लिए तुमको इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत होगा। उन सबको लेके बैठोगे तो एक ड्राइंग, शायद एक दिन में एक ड्राइंग कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, उसमें भी शक है। बट इफ यू ड्रू दिस ड्राइंग थ्रू बाय यूजिंग अ software called AutoCAD, you must be aware of this software AutoCAD, which is used to draw the engineering drawing, AutoCAD। तो तुम अगर ये ड्राइंग AutoCAD को यूज करके ड्रॉ करोगे तो एक दिन में तो तुम बहुत सारे ऐसे स्केचेस बना सकते हो। एक हाउस का प्लान बना सकते हो, ठीक है, एक जो हमारे फैंस में होता है, सीलिंग फैन में बॉल बियरिंग, ठीक है, या कोई कास्टिंग का पिक्चर, कोई फोर्जिंग का पिक्चर, ठीक है, तुम सारे बना सकते हो ऑटोकैड के थ्रू और बहुत जल्दी। तो दैट्स व्हाई इट गिव्स यू अ स्पीड। और ऊपर से ह्यूमन, तुम ह्यूमन हो, तुम कोई भी मेजरमेंट यहाँ करने जाओगी प्रोटेक्टर से या डायगोनल स्केल से, तुमसे कोई भी मिस्टेक हो सकता है कहीं भी मेजरमेंट लेने से, लेकिन कंप्यूटर में वो मिस्टेक नहीं होगा, तुम्हें पूरा एक्यूरेट मेजर मिलेगा। तुम्हें अगर एक 30 मिलीमीटर थिक चाहिए तो तुम्हें पूरा 30 मिलीमीटर थिक ही मिलेगा, ठीक है। ऊपर से एफिशिएंसी मिलेगा, ऑब्वियसली इट इज एक्यूरेट एंड एफिशिएंसी बोथ आर इंटरलिंक्ड। और इतनी सारी ड्राइंग करोगे इतने सारे शीट्स में, ये शीट तो डैमेज हो जाएगा, चूहे काट लेगा कि कोई इंसेक्ट्स काट लेगा, ठीक है, तो स्टोरेज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर कंप्यूटर में ड्राइंग करके सेव रखोगे, कंप्यूटर तो इसको बहुत एफिशिएंटली स्टोरेज कर सकते हैं। अभी तो टेराबाइट में स्टोरेज कर सकते हैं। Previously there used to be 500 GB, 600 GB hard disk. Now we have 10 TB hard disk, 20 TB hard disk, and versatile. Computer is very much versatile, that you can do all the work in computer and you can make your computer compatible with that work also, ठीक है। तुमको अगर कंप्यूटर में फिल्म देखना है, ठीक है, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, तुम लैपटॉप को टेबल पे बैठा के ऐसे ड्राइंग फॉइंग कर सकते हो। तुमको एक बेड पे सो के एक फिल्म देखना है, तुम लैपटॉप को बेड में ले जाके वहां पे बैठ के भी फिल्म देख सकते हो। इवन विद इन दिस कंप्यूटर मोबाइल्स ऑल्सो कम। कंप्यूटर हम जब बोल रहे हैं मतलब कंप्यूटिंग, तो मोबाइल भी कंप्यूटिंग करते हैं। तो तुम्हारे कंफर्ट में रह के एक मोबाइल में कोई एंटरटेनमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग, मैं अभी यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, तो ये भी तुम मोबाइल में बिस्तर में सो के भी रिलैक्स करते हुए भी देख सकते हो। मुझे पता है कि तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, फिर भी मैं बोला कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो इट्स वेरी वर्सेटाइल दैट यू कैन डू ऑल द वर्क अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट जोन। और उसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि हमें यहाँ डेटा देना पड़ता है। हम तो खुद हमारा ब्रेन से सोचते हैं, हमको क्या कोई
कुछ बोलते हैं, हम तो ब्रेन में जो आते हैं वही करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तो इट्स अ डिसएडवांटेज। कंप्यूटर खुद से ही तुम्हें ड्राइंग करके नहीं दे देगा, तुमको कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देना होगा, ऐसे ड्राइंग करना होगा, वो तुमको ही करना होगा। कैन ओनली डू व्हाट इट हैज बीन प्रोग्राम। अगर तुम कंप्यूटर के थ्रू रेलवे टिकट प्रिंट करना चाहते हो तो उसमें रेलवे टिकट का प्रोग्राम जो फीड किया दिया हुआ है, तो उसी प्रोग्राम से वो प्रिंट कर पाएगा, खुद से वो प्रोग्राम बना नहीं पाएगा। Previous experience nor can they arrive at a conclusion without going through immediate steps। मतलब तुमने पहले बहुत सारे ऑटोकैड का ड्राइंग बना लिया है, लेकिन फिर भी तुम इसको इतना एक्सपीरियंस में नहीं होगा कि इतनी सारी ड्राइंग ये बना लिया है तो खुद से एक ड्राइंग खुद बना ले। खुद से ये ड्राइंग नहीं बना पाएगा, तुम्हें ही इंस्ट्रक्शन देके वो ड्राइंग बनाना होगा कि कितना सेंटीमीटर डायमीटर होगा, कितना मिलीमीटर उसका थिकनेस होगा। समझ में आया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? बोलो। Advantages and disadvantages are clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंप्यूटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो अभी हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। दे यूजुअली हैव मोर वन सीपीयू। इसके पास मोर देन वन सीपीयू, ये पिक्चर में देख सकते हैं। मतलब एक एक रैक एक एक कंप्यूटर का है। वन रैक ईच मींस वन फुल डोर हैव वन means have the CPUs of one computer। क्यों? इसके जो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क करते हैं, जैसे बायोलॉजी में टू डायग्नोज वेरी डिजीजेस प्रोवाइड द असिस्टेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स। जो MRI होते हैं, यू हैव अवेयर ऑफ दोस टेस्ट, ठीक है, जो डॉक्टर जो एक स्पेशलिस्ट बैठ के करते हैं कंप्यूटर से रेडिएशन पास करके, तो ये सारे बायोलॉजिकल टेस्ट डिजीज को देखने के लिए होता है, तो ये कंप्यूटर के थ्रू होता है। मिलिट्री और डिफेंस में एज आई टोल्ड दैट स्पेस टेक्नोलॉजी में लगता है, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी लगता है, ठीक है। वीपन बैलिस्टिक्स मिसाइल ये सब लॉन्च करते हैं, तो वो सब सुपर कंप्यूटर से लॉन्च करते हैं। क्लाइमेट पैटर्न क्या होता है कि किसी जगह पे साइक्लोन आ रहा है और वहां पे फ्लड हो सकता है, तो ये डेटा उसको स्टोर रख के वो साइक्लोन आने से पहले हमें बता देता है। तो ये क्यों बनाया गया टू सेव ह्यूमैनिटी। हम ह्यूमन को सेव कर पाए वो सब नेचुरल कैलामिटी से। दैट इज व्हाई द सुपर कंप्यूटर ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड स्टोर्स द क्लाइमेटिक पैटर्न्स, और वो क्लाइमेटिक पैटर्न्स फिर क्लाइमेटिक ऑब्जर्वर के थ्रू न्यूज के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाता है। एयरलाइन इंडस्ट्री में जैसे मैंने बोला था सिग्नल्स, तो एयरलाइन इंडस्ट्री में जो सिम्युलेटर्स है, न्यू पायलट्स है, ठीक है, उसको डिजाइन किया जाता है इस कंप्यूटर के थ्रू। वेदरिंग फोरकास्ट, साइंटिफिक रिसर्च एरियाज लाइक वेदर साइंस रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, सारे जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होते हैं कंप्यूटर, वो सब सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। फिनेंशियल मार्केट में इट हैज अ वाइटल रोल in the real financial success in emerging online currency world such as Bitcoin and stock market। Bitcoin और stock market, ठीक है, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो कंप्यूटर्स है, ठीक है, ऑल आर सुपर कंप्यूटर्स। एडवांस्ड डेटाबेस जैसे डेटा माइनिंग, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा स्टोरेज हाउस इन द क्लाउड सिस्टम, लाइक इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सारे डेटा स्टोर रखना पड़ता है, ठीक है, तो इन सब के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज किया जाता है। Simulated environment in automobile, supercomputer provide help people for buying vehicle because before purchasing the vehicle customer can test through simulation environment that is created by supercomputer। तो supercomputer के थ्रू उस vehicle को टेस्ट कर सकता है उस vehicle को बाय करने से पहले। स्मॉग कंट्रोल कैसे? साइंटिस्ट यूज दिस सुपर कंप्यूटर इन द ओन लेबोरेटरी फॉर प्रेडिक्टिंग द फॉग। अगेन ये स्मॉग कंट्रोल वेदर फोरकास्ट के अंदर ही आ जाता है,
कि वेदर फोरकास्ट में ये सारे जो वेदर फोरकास्टिंग का फंक्शन है, स्मोक कंट्रोल, ये सब कुछ ये सुपर कंप्यूटर करता है। ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द क्लास। कोई डाउट है? नहीं तो मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दो सब। ओके सर। आदित्य, अर्घदीप, वैशाली, प्रजापति। ओके, टेल मी दैट हाउ फार वी हैव डिस्कस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी। मैं पीपीटी ओपन करके दिखाता हूँ, कुछ याद आए तो बोलो। हम स्पेस टेक्नोलॉजी कितना पढ़े हैं उसको थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। ये वाला हो गया यूएसए का स्पेस मिशन, आर्टेमिस, जूनो जो जुपिटर में मिशन गया था, मार्स परसिवरेंस मिशन, बोलो बोलो, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये वाला किया था कि जुपिटर में जो नासा का मिशन गया था। ठीक है, मुझे तो लगता है कि मैंने ये पढ़ा दिया ऑलरेडी। यू माइट नॉट हैव गॉट द स्लाइड्स मैं भेज दूंगा, लेकिन प्लीज याद करके बोलो कि ये सारे मैंने ऑलरेडी, जेम्स वेब टेलीस्कोप, कुछ याद आ रहा है कि ये हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? सर मुझे इतना याद है कि मैंने तो क्लासेस किया उसमें आपने नहीं कराया, और एक क्लास मेरी मिस हो गई है, उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक देखी नहीं है मैंने, तो शायद उसमें कराया ओके, होगा। आदर्श, आदित्य तुमने ये बोला था, अर्घदीप, वैशाली एंड प्रजापति, यू प्लीज कंफर्म कि हमने ये टॉपिक किए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का। सॉरी Sir, I have not done. वैशाली? Sir, I have not done this class. No, sir. ओके, प्रजापति? सर ये क्लास मैंने भी नहीं किया है। और गोदी? No, sir, I can't recall. I mean, Artemis, ये सब नहीं से। अच्छा, तो नासा हमने नहीं किया ये, ठीक है, तो मैं ये नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है, मैं और एक स्लाइड ओपन करता हूँ। हाँ, मेरा एक क्लास कैंसिल हुआ था, इसीलिए मुझे पता है। सर अभी मुझे ये याद आ रहा है कि शायद आपने नहीं कराया, क्योंकि मैंने जो क्लास मिस किया है वो अ, मतलब बीच का बहुत डिफेंस पहले का का था। क्लास है। हाँ, और लास्ट हाँ, जो क्लास डिफेंस हुई का थी था। उसमें आपने बोला था, जो लास्ट क्लास थी आपकी वो मैंने अटेंड की थी, आपने बोला था कि ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो उसके अच्छा बाद तो अच्छा, नेक्स्ट क्लास हुआ नहीं। ये वाला देखो, स्कोप ऑफ इसरो का जो है, इसरो सैटेलाइट प्रोग्राम, ये सब किया है हमने। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। हाँ सर, ये सब किया है। हाँ सर ये क्लास हुआ है। अच्छा, यस सर, ओनली ये द वाला मिशंस हुआ। ऑफ नासा ले। ठीक, इसका स्लाइड भी मिल गया ना तुम लोगों को? इस क्लास का स्लाइड भी मिल गया ना, ये इसरो का जो मिशन है? बोलो, प्रजापति, वैशाली, आदित्य, अर्घदीप, बोलो बोलो बोलो, इनका स्लाइड मिल गया है? मेरे पास नहीं है ये वाले स्लाइड्स। नहीं सर, स्लाइड नहीं है सर, स्लाइड सिर्फ डिफेंस का ही है। स्लाइड्स मैंने अभी चेक किया सर, 3 टोटल स्लाइड्स है,
3 PDFs है। अच्छा, तो स्पेस एक टेक्नोलॉजी ये का वाला कोई भी नहीं, स्लाइड नहीं मिला? नहीं ओके, नहीं मैं नहीं है, सर, स्पेस कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी का एक स्लाइड है। एक स्लाइड है बस एक। अरे और हाँ जिसमें वो 8 ऑर्बिट मिशन ये सब था ना? हाँ 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 हाँ, सर, जिसमें हाँ। सर स्टार्टिंग में हाँ ये सब दिया हुआ है। मिनिस्ट्री वगैरह ये जियो सब था। स्टेशनरी सैटेलाइट ये सब। हाँ सर, लो हाँ हाँ हाँ, ऑर्बिट, वो पहली वाला क्लास। लो ऑर्बिट से वो वाला सर। अच्छा अच्छा, तो मैं भेज दूंगा ये वाला। और नासा का मिशन मुझे लेना होगा, ठीक है? वी विल डू द नासा मिशन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? और कम्युनिकेशन का भी मैं भेज दूंगा, ठीक है? तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो देन आई विल एंड टुडेस क्लास। कोई डाउट नहीं है यस तो आज के क्लास में? नो सर, नहीं नो सर, ओके, डाउट। थैंक यू No, फॉर sir. अटेंडिंग द क्लास। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.